Let's begin. What is programming? It is just a way to communicate or to instruct computer to perform various tasks. Now you might be thinking why you should learn programming. Programming makes things easier for you. Learning to program teaches you persistence. Once you started doing programming, you will enjoy it. You must heard that engineers are known for their creative thinking. So coding develops structured and creative thinking too. अब बात करते हैं पाइथन के बारे में. What exactly is Python? Python is an interpreted, high-level and general-purpose programming language used worldwide. By saying interpreted language, it means that we don't have to worry about compiling the program every time we are executing it. Don't get scared by word high level language. अब हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब ऐसे नहीं बहुत कुछ हाई फाई होगा टफ होगा ऐसा कुछ नहीं है. इट सिंपली मीन्स मोर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फारदेस्ट टू हार्डवेयर. मीन्स जैसे अपने इंग्लिश में नॉर्मल सेंटेंस रीड करते हैं जस्ट वैसे ही आप कोड रीड करके इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस लिए कोड लिखा गया है. This makes Python one of the best and easiest programming language. Python's design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant white spaces. You have already been provided with the installation guide. In that, we provided steps for installing PyCharm, but most of the time, we will be running programs on Google Colab. Let me tell you some online tools to run Python code. You can see Google Colab, REPL.it, Jupyter Notebook. You can use anyone as per your comfort. Here are some career options in Python. As I told you earlier, Python is general purpose programming language. It can be used to develop things in different domains of technology like web development using Django. Maybe some of you had heard about Django earlier. Django is the best framework for web applications. Python can also be used in artificial intelligence, game development, machine learning, big data science, smart devices, etc. The companies like Dropbox, NASA, Yahoo, Facebook, YouTube, etc. are using Python for their company's project. You must be wondering what is the benefit of learning Python. You might get hired by some top-notch companies. You can see in the next slide like these are the following companies like you can see Uber, Facebook, YouTube, Google, Dropbox. So moving on, meet our team. This is our core team. Sonu Kumar Gupta, Pratik Upadhyay, Charu Bansal, Vibhanshu Garg, Nehal Chandra, Ankur Narayan Singh, Jasprit Singh, Gaurav Kumar, Aryan Singh. We all are from MNIT. Let me introduce you to your instructor for this particular course. This is Astha Mishra, Hackodev technical team member and Python and C++ programmer. This is Naman Damani, Hackodev technical team member, ML enthusiast and a competitive programmer also. This will be your syllabus for the Python course. We will be experiencing the Python beauty, how it makes things easier to program as compared to other languages. Thank you. Over to you, Naman. Hello everybody, myself Naman Dhamani. I am technical team member of Hackodev team. I will be your second instructor for this course. Now, कुछ लोगों का डाउट था कि पाइथन और डीएसए का कोर्स का कुछ सी प्लस प्लस और पाइथन के अंदर. तो बात ऐसी कि पाइथन का डीएसए बहुत मतलब डीएसए तो कंसेप्ट दोनों के बराबर है, बस सिंटेक्स का फर्क पड़ जाता है. तो कंपनी जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तक आप लोग सी प्लस प्लस यूज़ करोगे, उसके बाद आप लोग पाइथन पे शिफ्ट हो जाओगे क्योंकि पाइथन कोड करने में ईजी होती है और मशीन लर्निंग के अंदर इसके एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है. तो इन वर्कशॉप को अटेंड करो और इन्जॉय करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आस्था, यू मे कंटिन्यू नाउ. Hello everyone, myself Astha Mishra. I'll be your instructor today.
एंड अबाउट योर डाउट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आप लोगों के पास में एक चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे अंकुर नारायण सिंह जो है वो आपके डाउट्स जो है सब सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, आपके पास में इमीडिएटली इसका सोल्यूशन आ जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो अब हमने जैसे कि चारू ने बताया कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट? तो इंटरप्रेटेड से आप लोग क्या समझते हैं पाइथन के बारे में? सो लेट मी गिव यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ओके, तो हमारे पास में दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? दो इम्प्लीमेंटेशंस के तरीके होते हैं, एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है? जो आपने कोड लिखा है किसी लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? आपका लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है। लाइक अगर आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हो, है ना, तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के बाद में पहले पूरा लिख दिया, उसके बाद में वो कंपाइल होगा पूरा प्रोग्राम, दैट इज वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा एंड देन वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे लाइन टू लाइन वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। सो ये कंपाइलेशन वाला टाइम जो है वो बचता है आपका जब आपके पास में इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आती हैं उसके अंदर, ठीक है? तो अब और चारू ने बताया था कि हम लोग जो है वो जितना भी काम है हमारा कोडिंग वाला वो मोस्टली गूगल कोलैब पे करेंगे, राइट? तो गूगल कोलैब का इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह से रहेगा। ओके, सो आपको पहले ब्राउजर पे जाना है, गूगल कोलैब सर्च करेंगे आप लोग। ओके, एंड खोलते ही आपके पास में ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। लाइक मैं पहले यूज करती हूँ गूगल कोलैब, तो मेरे पास में ये और पुरानी नोटबुक्स बनी हुई आ रही हैं। बेसिकली एक नोटबुक में जो क्या है, आपका एक नोटबुक इज काइंड ऑफ अ फाइल जिसमें आप अपना कोड रखते हो, एक प्रोग्राम जो है वो रखते हो, दैट इज व्हाट अ नोटबुक इज। सो यहाँ पे आप न्यू नोटबुक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे। In a second you will get your notebook. Wait a minute. So you will get a notebook. Okay, जो नोटबुक है अपना गूगल कोलैब का वो एक ऐसा दिखता है कुछ। और अगर आपको इसके अलावा और नई नोटबुक बनानी हो, लाइक वो तो आपने पहली बार खोला तो आ गया, और यहीं से आपको अगर नई नोटबुक बनानी हो देन दिस ऑप्शन इन फाइल लाइक न्यू नोटबुक एंड यू विल गेट द नोटबुक ओवर देयर। अब यहाँ पे ये कुछ ब्रीफ आउट मैं करूंगी आपको गूगल कोलैब के बारे में। ओके, सो अगर आपको कोई कोड ब्लॉक बनाना हो, लाइक एक कोड फाइल बनानी हो, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपके पास में एक नया कोड लिखने का ये बॉक्स आ जाएगा। एंड इफ यू वांट टू राइट अ टेक्स्ट फाइल, सो ऐसे कोई टेक्स्ट पॉइंट्स ऐड करने हो, जैसे कि आई विल शो यू जो हमने बनाया है कोलैब का, जिससे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, विल गेट अ मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। और गूगल कोलैब में जो है वो आपके पास में एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हुई है। बेसिकली जब आप जो आपका पीसी है उसके अंदर उतना मेमोरी नहीं हो पाता, अगर आप जैसे अभी तो बेसिक्स के कवर करेंगे हम लोग आपके, लेकिन आगे जाके अगर आप मशीन लर्निंग में जाते हो या फिर कोई भी नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो आपके पास में इतना स्पेस नहीं रहता है। लेकिन ये गूगल कोलैब जो है वो आपको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराता है। ओके, इसमें आपको पता लग जाएगा कितना स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है। इट्स अराउंड लाइक 12 GB एंड 128, ठीक है? रैम आपका 12 पॉइंट समथिंग जीबी के अराउंड रहता है एंड आपका जो डिस्क मेमोरी रहता है वो 128 के अराउंड रहता है। सो अभी तो इतना ही है, बाकी जैसे जैसे अपने काम करते जाएंगे वो और बताते जाएंगे। और जैसे अगर आपको कुछ 2-3 फ्रेंड्स मिलके आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, तो वो फंक्शंस में डिवाइड होके वो काम चलता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे ये एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक है, ये आपको भेजना है, तो यहाँ पे शेयर के ऑप्शन से ये आप अपना सेंड कर सकते हो, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करोगे एंड देन यू विल कंबाइन इट एंड आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा पूरा। सो दिस इज हाउ कोलैब वर्क्स। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क इन कोलैब। ओके, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ना कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है, सो इट्स वेरी सिंपल। एंड रही बात फाइल नेम की, तो यहाँ पे आप यहाँ से फाइल नेम चेंज कर सकते हो, जो भी रखना हो, लाइक लेट्स से डे 1 पाइथन वर्कशॉप करके कुछ भी नाम रख सकते हो आप। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद आवर स्लाइड्स। ये कुछ बुक्स हैं जो हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है आप लोगों को। अगर हमारा जो सेशन है उसके अलावा हम पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे आपको, लेकिन फिर भी लाइक इन डेप्थ विजन चाहिए हो आपको और डीप में जाके पढ़ना हो, देन दीज आर सम बुक्स। द फर्स्ट वन इज पाइथन क्रैश कोर्स सेकंड एडिशन,
a hand-on project-based introduction to programming by Eric Metz. The second one is Head First Python, second edition, a brain-friendly guide by Paul Berry. And the third one is Programming Python, fourth edition, powerful object-oriented programming.